Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the third chapter in political science, democracy and diversity. Democratic system, the way system is running, and diversity is integral to each and every society in this world. पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी country नहीं है जहां पे there is no diversity. Each and every country is having a lot of diverse population, lot of people with lot of diverse ideas, culture, customs, traditions. लेकिन साथ में रहते भी हैं, झगड़ते भी हैं. There is overlapping, there is cross-cutting. Got it? All these concepts, overlapping and cross-cutting is the concept that is very new to the complete system. Very new, the terminology is very new. सिस्टम में ये बहुत दिन से होता आया है, लेकिन इसका कुछ नाम नहीं था. अब क्या हो गया है? नेम इज गिवन टू इट. ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग. ओके, अब हमने जो लास्ट क्लास में व्हाट वी हैड स्टार्टेड इज 3 डिटर्मिनेंट्स. ओके, 3 चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं. दीज आर द 3 फैक्टर्स कि आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन. ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट्स दैट डिसाइड द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स of social division. Social division की वजह से many times it happens कि it leads to differentiation, it leads to a disintegration of the society. कितनी बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में दूरियां हो जाती हैं लोगों के बीच में. Sometimes it takes such a bad shape कि the people are totally separated. कंट्री के कंट्री अलग हो जाते हैं. तो अब क्या होता है कि पहला होता है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज. फर्स्ट थिंग इज, ये हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में चिल्ड्रन. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इज हाउ पीपल perceive their identities. आप किसी कंट्री में रह रहे हो, when somebody is staying in some country, how is the country supporting the person or how is the identity there? जैसे कि हमने again we have discussed about the example of Northern Ireland. Catholics were there, Protestants were there. They have multiple identities. किसी भी country में रह के any person can have multiple identities. And each identity, हर एक identity में the person needs respect. ठीक है, सम्मान चाहिए, सम्मान से रहने का हक चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं that is required. So majority of अब जैसे बेल्जियम में भी था, initially they felt कि नहीं, the French people are dominating या जर्मन्स के साथ अन्याय हो रहा है. बाद में लोगों को समझ में आया ऐसा कुछ नहीं है. It was nothing like that. The way they had tried to find out the solution, सारी problems का हल वही निकल गया. All the problems were sorted then and there. Got it? तो यही चीज समझने वाली बात है. People can think themselves एज एन इंडियन. एक इंडियन की तरह अपने आप को देखते हैं. इंडियन की तरह देखते क्या है? इंडियन है ही. the people are Indians and language group, social and religious community. social group अलग है, religious community अलग है. इन सारी चीजों में रहने के बाद भी लोगों की similar identity है. The people somewhere are related and attached to each other in one or the other method.
अब क्या होता है, सेकंड क्या है, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स, देखो पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, lot of politics is involved here, how political leaders raise the demands of any community. Second is, पहला तो है लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, लोग अपने आप को कितना सताया हुआ परेशान समझ रहे हैं. सेकंड इज हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज this issue, raise the demands of any community, raise the demands of any community. किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को वो पॉलिटिकल लीडर्स किस हद तक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ओके, एंड द वे political leaders raise these demands, these are very important. कितना, किस हद तक आपका, it is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework. Accommodate कीजिए ना, लोगों को वहीं रखने की कोशिश कीजिए. Try to keep the people together. Accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. एक ही जगह पे इतना भड़काना नहीं ना है, ओहो आपके साथ तो अन्याय हो रहा है, आप कैसे इतना सह रहे हो, भड़काने वाली बात. नो, दिस इज वेयर द थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज इजियर टू accommodate demands that are within the constitutional. Demands should be accommodated. भाई हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी डिमांड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. अरे आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को लेके चलिए ना. वाई टू इंस्टिगेट वन कम्युनिटी अगेंस्ट दी अनदर and they are not at the cost of another community. These demands are not at the cost of another community. Demands you are putting up, if any community is putting up any demand, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उनकी डिमांड को फुलफिल करने के चक्कर में, एक लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी इनजस्टिस विद द अदर कम्युनिटी. अब जैसे कि द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वॉज एट द कॉस्ट ऑफ, अब जैसे अभी हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे, सिन्हाला वॉज गिवन इंपॉर्टेंस, अब तमिल कम्युनिटी फेल्ट बैड. वी विल टेक हियर, कितना अच्छे से समझाया गया है, आप ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका. ओके, सिन्हाला कम्युनिटी अपनी डिमांड को इन्होंने फुलफिल किया, फुलफिल्ड देयर डिमांड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ तमिल्स. तमिल्स के श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको दबा दिया, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने लगे. अरे क्या जरूरत है? गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन द कंट्री. हर एक कम्युनिटी को उनका हक मिलना चाहिए. यूगोस्लाविया में क्या हुआ? द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स. इस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि एक ही कंट्री में रहना मुश्किल हो गया. कहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, अब हमको आपके साथ रहना ही नहीं है.
The Tamil community in Sri Lanka felt so bad that they had to take the decision, and a lot of violence was there. The country has to face the wrath of civil war. इस हद तक लोगों को बुरा लगा कि lot of violence was there. Sri Lanka has to face this violence. तो ये इसमें क्या था ना, that a negative role was played by the leaders. Leaders को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था, which they have not done. The leaders have not done justice. The leaders have not worked in a proper manner. जिसकी वजह से कि इतना बड़ा नुकसान हुआ. And I'm talking of Sri Lanka. Accommodation was missing. सबने मिलके एक साथ हल निकालने की कोशिश नहीं की, due to which the situation became worse. और इसी worse situation को हर every country, same thing happened in Yugoslavia also. तो मतलब when the demands were put up or one community has been dominating the other community to such an extent कि the other community starts feeling rejected and dejected. Okay? तीसरा, पहला क्या था? First three determinants, तीन चीजें हैं जिसकी वजह से diversity can lead to disintegration. Diversity है, सबको साथ में लेके चलना है, सबको सम्मान देना है, और यहां से क्या होता है, कंट्री टूटने लगती है. इस disintegration को बचाना है. We have to see that the country is not disintegrated. तो ये हो गया, पहला हो गया कि हाउ पीपल आर परसीविंग देयर आइडेंटिटीज, वो अपने आप को किस लेवल से देख रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दैट हाउ द लीडर्स आर टेकिंग अप द इशू. वहां पे व्हेन द सिन्हाला कम्युनिटी जब इस तरह का कर रहे थे, तो सिन्हाला लीडर्स शुड हैव टेकन अ स्टैंस कि इफ द तमिल्स आर फीलिंग बैड, इट शुड बी स्टॉप, इट शुड कम टू अ स्टैंड स्टिल. क्यों इनके साथ अन्याय किया जाए? Why there should be injustice with them? यहीं से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई. So demand for only Sinhala was at the cost and interest of and identity, at the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. Okay. Now third is that how government reacts to the demand of different groups. थर्ड डिटर्मिनेंट, तीन ही है ही, is how government reacts to the demand of different communities. अलग अलग कम्युनिटीज हिसाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका में देखा कि व्हाट इज द डिसीजन. अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा कुछ है. द रूलर्स आर बेल्जियम एंड श्रीलंका, टू एग्जाम्पल्स, द बेस्ट एग्जाम्पल. वी हैव टू सी द एग्जाम्पल ऑफ Belgium and Sri Lanka. Leaders have not taken a proper decision. Leaders ने अगर proper decision लिया होता तो rulers are willing to share power and accommodate the regional demands of minority community. ठीक है, रूलर्स, जो लोग रूल कर रहे हैं, जिनके हाथ में सारा पावर है, रूलर्स आर रेडी टू accommodate, रूलर्स आर रेडी टू accommodate demands of minority community. हम माइनॉरिटी नहीं कह सकते, सारी कम्युनिटी को हमको देखना है. वी हैव टू सी ऑल द कम्युनिटीज.
रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अरे डिमांड तो भाई सबको हक है, अपने हक के लिए लड़ने का सबको हक है। So when the people are fighting for their own rights, the government should support them. तो यहां पे यही चीज, this is what we are understanding here. Such attempts, लेकिन अगर they try to suppress such a demand in the name of national unity, if the demands are suppressed, चुप हो जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, हम जो कह रहे हैं हमारी बात मानो, दीज थिंग्स आर द पॉइंट्स जो लोगों को बहुत बुरा लगता है। पीपल फील बैड अबाउट इट, एंड यहीं से लड़ाई शुरू होती, यहीं से द डाइवर्सिटी लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, विच वी शुड अवॉइड। इस चीज को हम लोगों को अवॉइड करना है। द डिमांड्स आर, अगर सप्रेस किया जाता है, द एंड रिजल्ट इज क्वाइट द ऑपोजिट। In the name of national unity, then result is quite separate, opposite, बिल्कुल उल्टा। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, जैसे कि I'll give the example of श्रीलंका। The Sinhala community is telling to the Tamils, नहीं, देश की भलाई के लिए ये बहुत अच्छी चीज है अगर हम सिन्हाला को ही एक्सेप्ट करेंगे, एंड द सिन्हालास आर प्रोग्रेसिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू ऑल अपोजिंग। सो तमिल्स ने जंग छेड़ दी, देयर वॉज अ कंडीशन ऑफ सिविल वॉर। तो एजर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज डेंजर नहीं है। देखो डाइवर्सिटी है, सब लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं। इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। डेमोक्रेसी में सोशल डिविजन इज गुड एंड हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। खाली यही है, वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल डिविजन दैट एग्जिस्ट। अलग अलग डिविजन्स जो हैं, सोशल डिविजन्स दैट आर देयर, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, सारे ग्रुप्स को साथ में लेके चलना है। एवरी ग्रुप should feel happy in the country. They should never feel segregated and separated. जब segregation and separation की feeling आती है, वहां से the things start taking a very wrong turn. बहुत ही एक अलग तरीके का माहौल बन जाता है. This leads to expression, various kinds of social division is there. One another and किसी की भी इंटेंसिटी को कम नहीं करना है. Everybody's requirements are fulfilled. Everybody's views are seen. तो there should be always a positive attitude towards diversity. प्री डिटर्मिनेंट्स जो हैं यहाँ पे खत्म होते हैं कि गवर्नमेंट को देखना है. यहाँ पे बेल्जियम में कितना अच्छे से किया उन्होंने. In Belgium, the solutions that were found out, उससे Belgium set up an example to the other parts of the world. दुनिया के लिए बेल्जियम एक एग्जाम्पल बना. ठीक है. एंड यही एग्जाम्पल हमको देखना है कि सब लोगों को साथ में लेके चलना है. A positive attitude towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. Positive attitude towards diversity. लोग हैं, कंट्री में लोग हैं, भैया सबको साथ में लेके चलो ना. क्यों किसी को आप इतना सप्रेस कर रहे हैं? क्यों किसी को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको लगे, उसका दम घुटने लगे? पीपल हु फील मार्जिनलाइज, जिनको लगता है कि हमको बिल्कुल अलग से रखा गया है, वी आर नॉट इन द डेवलपमेंटल ग्रुप, सब तो आगे बढ़ रहे हैं, हमको पीछे छोड़ दिया है. हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड and discriminated have to fight against the injustice. Marginalized people, have to fight against
इनजस्टिस। चुप भी देखो, सहना भी नहीं है ना। कंट्री में रह रहे हैं, सबका ख्याल रखा जा रहा है, तो जो ग्रुप थोड़ा सा रिजेक्ट, थोड़ा डाउन ट्रॉडन है, थोड़े से लो हैं, उनको हम अलग थलग क्यों करेंगे? वाई आर वी सेपरेटिंग देम? वाई आर वी नॉट टेकिंग देम टुगेदर? तो इसको यही चीजें जो हैं, इट टर्म समटाइम्स टेक्स अ डेमोक्रेटिक पाथ एंड वॉइसिंग देयर डिमांड्स इन अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। पीसफुली लेते हैं, ज्यादा वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस हर तरीके से अवॉइड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट करना है। सो सोशल डिफरेंसेस can take a form of unacceptable level of social inequality and justice. इससे क्या होता है कि we need to understand that everybody who is living in the country should be respected and diversity should be accepted and accommodated. किसी को भी अपने से इतना अलग नहीं करना है that the people start feeling having a very low kind of a feeling. Got it? This needs to be avoided. So here we come to the end of this chapter, children. Now we will be discussing the question and answers. Come, let's see the question and answers. Actually, students, we have completed this chapter 3, democracy and diversity. Here we are talking about democracy. Here we are talking about diversity. But children, one thing that I wanted to bring to your notice is that in this chapter, some of the figures that are there, some of the pictures that are there are very expressive. These pictures are giving us a very in-depth meaning of all the things about diversity. एक मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रही हूँ. I of course we will be discussing the question answers also, but before that the picture that I wanted to show you is that देखो इस तरह का कार्टून है. The cartoon that is there, the cartoon like this can be read by different people to mean different things. What does the cartoon mean to say? How do other students in the class read this? ये कार्टून आप देखिए children. And जो मेरा देखो, you can have your own perception. I am not explaining anything. Nothing can be explained. So it is the same country. It is the one country where all the people are living together. यहाँ पे you can see the whites and this is the black. Whites क्या कर रहे हैं? Black को काट रहे हैं. The whites are just cutting the black. ये देख रहे हैं आप? ये देखिए कुल्हाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है. White people have raised the hammer and ये ब्लैक इधर आपको नज़र आ रहे हैं. एक ही कंट्री में रह के इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इज़ डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल, isn't it? I hope it is clear to you. ये आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, पहला तो हमने ये देखा. एक और दिखाती हूँ आपको. ये एपार्थीड. एपार्थीड के ऊपर some questions are there जिसमें कि the apartheid, I hope you all know about the concept of apartheid. In class 9th also we have discussed about the constitutional design, जहाँ पे कि हमने नेल्सन मंडेला के बारे में बात किया था. We had talked about Nelson Mandela and we had also discussed about the constitutional design in Africa, the system that existed in Africa. Got it? So dark slender body. This was my mother. देखो मदर के ऊपर कितना सुंदर एक पोएम लिखा हुआ है. Drudged in the woods for sticks from morning on, all we brothers sitting waiting watching for her, and if she didn't sell the wood, all of us slept hungry. कितना दर्दनाक पोएम है. Just see how the people who are from the lower society, they face the problems और किसी को बता भी नहीं सकते हैं. They cannot share their feelings with anyone. ये भी देखिए तो ये इस तरह से आया है. This is the poem by Dalit writer, The Hidden Apartheid. Apartheid है means
how it has been brought, how it has been practiced. Okay, अब आप ये देखिए यहाँ पे we are finding one very nice, ये देखो, just see these pictures. मैंने कहा आपको ना कि in this chapter the pictures that we have is will move your thought process, आपको हिला के रख देंगे, आपको झकझोर के रख देंगे. Just see what is written on this window. No blacks, no dogs, no Irish. ब्लैक्स भी नहीं, डॉग्स भी नहीं, आयरिश भी नहीं. ये ब्लैक्स के साथ ही ब्लैक्स के साथ डॉग्स को कंपेयर किया जा रहा है, आयरिश मैन को कंपेयर किया जा रहा है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन था. And on the other hand, they are saying no racism, no prejudice, no bigotry. Bigotry means supporting any one kind of a religion. Okay, London में this was there and Belfast में this was there in 2003. ये देखो नॉर्दर्न आयरलैंड में, आयरलैंड का एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में बहुत जगह डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस द इशू ऑफ आयरलैंड एट मेनी प्लेसेस. तो यहाँ पे वी आर फाइंडिंग दैट द कॉलोनीज, जो प्रोटेस्टेंट्स की कॉलोनीज थी, वहाँ पे कैथलिक कम्युनिटीज दे वेर डिवाइडेड बाय वॉल्स. दीवारों पे इनका ये पिक्चर्स लगाया गया था. दीज वॉल्स, ये जो पिक्चर्स थे, ये जो वॉल्स थे, sometimes filled with graffiti. Graffiti means आप दीवार के ऊपर जो ड्राइंग करते हैं. Yes, the kind of pictures that you make on the walls, that is what is graffiti, as you see here. So the Irish Republican Army and British government, ये आयरिश आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक साइन किया था एग्रीमेंट 2005 में. तो कन्फ्लिक्ट देखो सोसाइटी में कितना था, हाउ मच द सोसाइटी वाज देयर इन कन्फ्लिक्ट. आपस में कितनी लड़ाइयाँ थी ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. ये यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है. एक ये मेरे फेवरेट है. दिस आई वॉन्टेड टू शो यू. जस्ट सी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. जस्ट लुक एट द एक्सप्लेनेशन, हाउ वेल इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस. फुटबॉल है एंड एक में रेसिज्म बताया गया है. दिस इज पैशन एंड दिस इज रेसिज्म. सबको हक मिलना चाहिए. यहाँ पे ब्लैक को भी उतना ही हक मिला है जितना वाइट्स को हक मिला है. यहाँ पे देखो ब्लैक्स को एक तरफ कर दिया गया है, वाइट्स को एक तरफ कर दिया गया है. सो दिस इज वॉट इज अपार्थीड, दिस इज वॉट इज डिस्क्रिमिनेशन विच पीपल आर अपोजिंग. ओके चिल्ड्रन, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी. एक और फिगर है, दिस वन इज माई फेवरेट. आई टोल्ड यू ना कि कितना सिंपल में दे हैव एक्सप्लेन्ड डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करना है. एंड वन मोर दैट इज देयर इज हियर, too many small divisions are better than a single big division. So politics is a force of unity. सब लोग मिलके चलते हैं, सब लोग यूनाइटेड रहते हैं. तो क्या हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि people are united and people are joined with each other. Okay, now we will be looking for the question and answers. Let's discuss the question and answers, children. सबसे पहले the outcome of politics of social division, 3 factors जो अभी हमने 3 determinants डिस्कस किया है. yes, we are talking about those 3 determinants. okay, now just wanted to show you these answers. Of course it is there on the net, but then explanation के लिए I have taken it out, जिसमें कि 3 factors just now that we have discussed. It is the people's perception of their identity in a country, हाउ पीपल आर लुकिंग एट देमसेल्स, किस तरह से अपने आप को परसीव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने बारे में. दैट इज टू बी अंडरस्टूड वंस. एक बार ये समझना है, जब ये सिंगुलर होता है एकोमोडेशन इज देयर, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एकोमोडेट. देन पॉलिटिकल लीडर्स, हाउ दे आर पुटिंग अप ऑल दीज डिमांड्स, हाउ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दैट इज वॉट इज मैंशनड हियर. Then government's reaction, how does the government react to all these situations.
This is another point that we need to understand. Okay, आंसर नंबर 2, सोशल डिफरेंस, सोशल डिविजन कब बन जाता है? व्हेन इट ओवरलैप्स, जब ओवरलैपिंग होता है देन इट बिकम्स अ डिविजन। तो हमको किसी को भी इतना नहीं दबाना है कि उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल हम पूरी तरह से दैट वी फिनिश द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। वी डू नॉट हैव टू डू एनी सच थिंग। जब हम इस तरह की चीज़ करते हैं देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसके बाद हाउ डू सोशल डिविजन अफेक्ट्स पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड जहाँ पे रिलीजियस डिविजन इज़ देयर, how conflicts have been there. Catholics wanted Northern Ireland to join the Republic of Ireland. Ireland वाला जो example हमने जहाँ पे discuss किया था, this is the same example that we need to understand. Overlapping पहला होगा, इसमें 4th number के जो fill in the blanks हैं, dash social difference create possibilities of deep social division, that is overlapping. And then cross cutting do not usually lead to conflict. Okay, then 5th में you have the options that are given here. You have to choose the option. So for 5th में first is D, answer number 6 का B होगा, answer number 7 is the sequence. You have to arrange it in a sequence. वो sequence में आप उसको arrange कर लीजिएगा. So these were small questions that you can answer easily. Children, please solve these questions and be ready with your chapter. Okay, thank you children, and all the best to you.